the petition that was filed by Girishji, which was the first petition filed before the High Court, but it had been transferred to Mumbai for hearing. From Mumbai, it's come back to Goa. In the meantime, there was another petition filed by another party on which notices had been issued for today, and it was listed today for final disposal. So now both petitions have been clubbed. In our petition, notices have been issued to all the respondents. Speaker was, counsel for the speaker, that is the Advocate General, was present. And now it is listed for final disposal on 10th. Before that, all parties have to complete their pleadings. Once the pleadings are complete by 9th, on 10th, the High Court will hear everybody. But beyond what we have said in the High Court, I would like to reiterate our commitment to democracy, our commitment to an ethical government. Personally, and my party believes, there should be no defection. And defection is a disease, it's a scourge which ruined and gave a bad name to our democracy. So we should do everything within our power as a political party to give clean and good administration, governance, and have a defector-free government. Anything else you want to ask? I can, since I'm in Goa since yesterday, I can talk of another issue which touched my heart. First of all, let me tell you that in Central India, when it comes to whether it's the Christians or the Jains or the Muslims, all minorities, and any weaker section, whether it's tribals or whether it is scheduled caste or scheduled tribe, I am one of the first councils who stands up for them. You can ask anybody, that's not an issue. When I came there yesterday, I found that the church was very incensed about some construction activity which took place in an archaeological protected area. I believe the church has taken the matter to Supreme Court. That's what I was told. If that is correct, we as lawyers would assist the church if they require in Supreme Court. Apart from that, as a parliamentarian, which is my other cap that I wear, we will take up this issue in the parliament also, because to protect the archaeological wealth of Goa is absolutely necessary. Rules and regulations have to be respected and complied with, and we will, as a party, stand by the rules and the regulations and will never support violators. Anything else you want to ask? How do you see the Madavi River? Sorry? Madavi River diverted to the Karnataka. I have no issue, I have no knowledge about that. So nobody's ever told me anything on that subject, so I wouldn't be able to comment. Anything which I'm not an insider, I'm an outsider. सर कितना सीरियसली ये भविष्य का पोल देख रहे हैं कांग्रेस में, क्योंकि अलायंस का तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ बोल रहा है। देखिए, कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी। कांग्रेस ने अपने जीवन काल में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, और अप्स एंड डाउन्स एक जीवन का पार्ट होता है। जब कभी डाउन होती है कोई चीज तो वो अप ऊपर भी जाती है। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कांग्रेस ऑन इट्स ओन will gain full majority in this election. मुझे राहुल जी पे भरोसा है, मुझे कांग्रेस की लीडरशिप पे भरोसा है, सोनिया जी पे भरोसा है, और स्टेट की लीडरशिप पे भरोसा है। जिस प्रकार से गिरीश जी ने इंसिस्ट करके हम लोगों को बोला कि आपको आके हमारे लिए केसेस लड़ने पड़ेंगे, मैं इससे समझ गया था कि ही इज अ वेरी सीरियस मैन अबाउट दिस इन स्टेट, और वो चाहते हैं कि उनके जो बड़े इश्यूज हैं
उनको स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया जाए। मेरा तो खुद मैटर्स आज दूसरे कोर्ट में लगे थे, मेरे को तो आज जेपीसी में भी जाना था, मगर सब काम छोड़ के मैं आज आया इनके कहने से, चिदम्बरम साहब के कहने से, हाईकमान के कहने से। तो गिरीश जी जो कर रहे हैं इस स्टेट के लिए, कांग्रेस के लिए, आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग सब स्टेट कांग्रेस के साथ हैं, हम लोग स्टेट कांग्रेस की जो एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, एंड वी विल इंश्योर दैट कांग्रेस इमर्जेस एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गोवा। सर क्या लगता है कि आप कांग्रेस होप रखेगा सर बिफोर दिसंबर 10 तारीख को ये फाइनल आ सकता है सर? नहीं ऐसा नहीं। देखिए वो तो जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो तो वक्त से आपको खुद ही समझ आ जाएगा कब होगा कब नहीं होगा। अलायंस का क्या चल रहा है? अलायंस हो रहा है? देखिए अलायंसेस की बात मेरे लेवल की नहीं है। मैं आई एम अ लॉयर एंड आई एम अ पार्लियामेंटेरियन। अलायंसेस तो हाईकमान और गिरीश जी डिसाइड करते हैं। वक्त एट द राइट टाइम जो अलायंसेस होंगे या नहीं होंगे उसकी जानकारी ये लोग आपको देंगे। सर जस्ट हिंदी में और थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए अबाउट टुडेज केस। आज स्टेट गोवा स्टेट कांग्रेस कमेटी के रिक्वेस्ट पे हम लोग आए। हमारी पिटिशन बहुत दिन से पेंडिंग थी, लंबित थी हिंदी में बोलेंगे तो, कोर्ट के सामने। पहले बम्बई में हियरिंग होनी थी, फिर बम्बई में हियरिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो उस मुकदमे को गोवा भेज दिया गया। और आज पहली पेशी थी जिसमें हम लोगों को एडमिशन पे बहस करनी थी, क्योंकि एक आइडेंटिकल पिटिशन ऑलरेडी सितंबर में एडमिट हो चुकी थी और वो भी आज लगी थी डिस्पोजल के लिए। तो इन दोनों केसेस को टैग कर दिया गया है, रिप्लाई और रिजॉइंडर फाइल करने के लिए टाइमलाइन दे दिए गए हैं, और 10 तारीख को दोनों पिटिशंस को हियरिंग के लिए रखा गया है। अब हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग संक्षेप में कोर्ट को बिना बर्डन किए अपनी बात जल्दी से रखें, रिटर्न आर्गुमेंट्स भी दे देंगे, कोर्ट सबको सुनेगी और जो उचित कोर्ट समझेगी वो निर्णय देगी। एक प्रकार से उम्मीद है कि फाइनल हियरिंग होनी चाहिए, बट एज आई सेड 10 तारीख के जब केस स्टार्ट होगा उसके बाद समझ आएगा। How do you look at delay in hearings, delay in complete hearing? It was done some 2 years back. Still you are not getting a verdict on simple thing, not criminal. मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ। आई एग्री विथ यू। हम पार्लियामेंट में हम इस इशू को रेज कर रहे हैं कि 10th शेड्यूल की कुछ टाइमलाइन होनी चाहिए। स्पीकर साहब महीनों सालों तक इन केसेस में निर्णय नहीं देते हैं। दे डोंट गिव डिसीजंस इन दीस केसेस। हमने आई हैव अपीयर्ड इन एटलीस्ट 5-6 केसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग तेलंगाना, मध्य प्रदेश, जहां पर स्पीकर्स वर नॉट टेकिंग डिसीजंस ऑन दीज एप्लीकेशंस। तो एक जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट का आया जस्टिस रोहिंटन नारिमन की बेंच का, जिसमें कहा गया था कि मैक्सिमम पीरियड इन विच अ स्पीकर शुड डिसाइड सच एप्लीकेशंस इज 3 months। यही प्रश्न एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया हुआ है, पेंडिंग है। मेरे ओपिनियन में कोर्ट अपना काम तो करेगी और इसको एक्सपेडिशियस हियरिंग के लिए कोर्ट एक रास्ता निकालेगी, बट पार्लियामेंट को भी अमेंडमेंट लाना चाहिए कि स्पीकर्स का एक टाइमलाइन रखें। और मैं भी ये समझता हूं कि अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बोला गया है कि जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ स्पीकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है एज अ जज, स्पीकर इज लाइक अ जज इन दिस केसेस, एक एडजुडिकेशन में और जज है। तो स्पीकर के लिए उन्होंने बोला है कि अगर स्पीकर्स इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कई दफे पार्टी की इंटरेस्ट से बंध जाते हैं, तो समय आ गया है कि अब देश में अमेंडमेंट लाना चाहिए और ये पावर किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को देना चाहिए। इट डजंट मैटर विच पार्टी, ये प्रॉब्लम क्रॉस पार्टी है। तो जब भी ऐसे इश्यूज आए, आई वुड प्रेफर एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को क्रिएट किया जाए, उनको पावर किया जाए, टाइमलाइन दिया जाए, जिससे ये जो बीमारी है जो हमने गोवा में देखी और हम तमाम दूसरे स्टेट्स में देख रहे हैं, इस बीमारी का अंत हो। क्योंकि इस बीमारी के साथ प्रजातंत्र नहीं चल सकता बहुत दिन तक। प्रजातंत्र को चलाना है
तो आपको क्रेडिबल प्रजातंत्र चलाना पड़ेगा। अगर हम इस प्रकार से अगर हम हमारे इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करेंगे तो बड़ा प्रजातंत्र के लिए बहुत ही मैं कहूँगा एक सैड डे रहेगा। So do you think judges have malified interest? जजेस Judges of high courts have malified interest. नेवर, in resolving this. हमको तो कभी कभी ये चीज नहीं दिखी आज तक, और आज तक हम लोग ने Because there is subsequent amount of delay in this type of petition. नहीं, delay is always at the hands of the speakers, not at the hands of the court. But petitions are filed before high court. नहीं, Before high वो court. तो जब स्पीकर नहीं निर्णय लेते हैं तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब स्पीकर निर्णय नहीं लेते हैं, नॉट तो ये इसमें ओरिजिनल अथॉरिटी इज नॉट द कोर्ट, द ओरिजिनल अथॉरिटी इज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। तो आज हमको कोर्ट को जाना पड़ा क्योंकि ऑफिस ऑफ द स्पीकर ने एक ऑर्डर पास किया है जो हमारे विश्वास में, जो हमारी सोच के अकॉर्डिंग एज पर शेड्यूल 10 नहीं है, इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ा। तो हमको जजेस से कोई इशू नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। प्रॉब्लम इज एट द हैंड ऑफ द स्पीकर। थैंक यू सर कितना सपोर्ट होता है कि गोवा फॉरवर्ड भी है तो फाइल किया पिटीशन, सॉरी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी इंटरवेंशन किया है सर। नहीं, शायद उनने इंटरवेंशन फाइल किया है। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जब आप सबको सुनेंगे तो हमको भी सुन लेना, और उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स कुछ फाइल नहीं करना चाहते हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये लीगल प्रश्न है, इसलिए हम उस लीगल प्रश्न में अपना योगदान भी देना चाहते हैं। ये कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा ऐसा लग रहा है? कांग्रेस को किसी की सपोर्ट की जरूरत ऐसे अलग से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का केस अपने उन लेग्स पे खड़ा है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम शेड्यूल 10 की बात कर रहे हैं, हम लॉ इन जनरल की बात कर रहे हैं। कोर्ट सबको सुनेगा, जो उचित होगा वो निर्णय कोर्ट देगा। लेकिन कोर्ट में तो गोवा फॉरवर्ड के लॉयर ने बोला है कि वी आर सपोर्टिंग द पिटीशन। वो उनकी वो उनके ऊपर वो जो चाहे करें, बट वो क्या करेंगे उससे हम गाइडेड नहीं हैं। थैंक यू। मुझे एक बात की उम्मीद है कि इस चुनाव में वो यहाँ की जो जनता है अपनी वोट्स डिवाइड नहीं करेगी, समझदारी से कार्य करेगी अपना काम, और एक सक्षम क्लीन गवर्नमेंट को जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है उसको चांस देगी। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.